Good morning, ninth class student. We are discussing the topic cell organelle from the NCERT book. Cell organelle, you know all. Cell organelle are the living part of the cell that float in the cytoplasm. Inside the cell, it performs various functions. Every cell has a membrane around it to keep its content separate from the external environment. You know, every cell has the cell membrane. Now, large and complex cells including the cell from the multicellular organism, चाहे वो unicellular organism हो या multicellular organism हो, I explain you these terms in the previous video, need a lot of chemical activity to support their complicated structure and function. You know well, cell is the structural and functional unit of life. Cell is providing the structure to our body and maintaining the various function inside our body. To keep these activity of different kind separate from the other, these cells have membrane bound cell organelle. Now we are discussing here about the various cell organelle. We have talked about the nucleus in the previous section. We know center of the cell is known as nucleus. Nucleus is also known as the control room of the cell. Some important example of cell organelle we are going to discuss are endoplasmic reticulum, Golgi aperture, lysosome, mitochondria, plastid and vacuole. All these cell organelle we are going to discuss from the NCERT book. They are very important. These cell organelle are very important. Why? You know why? Why they are important? These cell organelle are very important because they carry out some very crucial functions in the cell. They are performing very particular function for the cell. That's why these cell organelles are very important. First one I am discussing here about the endoplasmic reticulum. The endoplasmic reticulum is a large network of membrane bound tubes. ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ये शीट्स की फॉर्म में भी अरेंज हो सकता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट लुक लॉन्ग ट्यूब्यूल और राउंड और ऑब्लोंग बैग वेसिकल्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है. दिस वाज द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड और प्रोटीन्स की. सिमिलरली द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड proteins. Now here we are discussing the two type of endoplasmic reticulum. There are two type of endoplasmic reticulum, that is rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Now the rough endoplasmic reticulum looks rough under the microscope because it has particle called ribosome attached to its surface. Rough endoplasmic reticulum हमेशा rough दिखाई देता है because ribosomes are attached to its surface. Ribosomes are the structure which help in the synthesis of proteins, which help in the manufacturing of proteins. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे जहाँ राइबोसोम अटैच है उसे बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे जहाँ राइबोसोम अटैच नहीं है उसे बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नाउ the ribosome which are present in all the active cell are the site of protein manufacture. Ribosome क्या कर रहा है? It help in the manufacturing of protein. उसके बाद the manufactured proteins are sent to the various place in the cell depending upon the need using the endoplasmic reticulum. अब ये प्रोटीन बनने के बाद कहाँ जा रहे हैं? सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है इन प्रोटीन्स का. नाउ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में हेल्प कर रहा है? इट हेल्प इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल, लिपिड मॉलिक्यूल दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेल फंक्शन एंड दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेल फंक्शन. सम ऑफ दीज प्रोटीन एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन. इसके अलावा ये जो प्रोटीन्स और लिपिड्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू बन रहे हैं, दे हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. So the question arises here, what is membrane biogenesis? membrane biogenesis क्या है? जो प्रोटीन्स और लिपिड्स और फैट मॉलिक्यूल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाए, they help in building the cell membrane, they help in maintaining the structure of the plasma membrane. That's why this process is known as membrane biogenesis. Some other proteins and lipids also function as enzyme. इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन बना रहा है, जो लिपिड बना रहा है, वो किसकी तरह फंक्शन कर रहा है? एंजाइम्स और हार्मोन्स की तरह भी एक्ट करता है ये. So this was all about the endoplasmic reticulum. Next cell organelle I am going to discuss with you all is the Golgi aperture. Now फर्स्टली वी हैव डिस्कस अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, लिपिड्स और प्रोटीन्स फैट मॉलिक्यूल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी. नाउ द गोल्जी एपरेचर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द कैमिलो गोल्जी वाज द नेम ऑफ साइंटिस्ट.
कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है, अरेंज पैरेलल टू ईच अदर इन द स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्नस की फॉर्म में गोल्जी एपरेचर का स्ट्रक्चर अरेंज है. These membrane often have connection with the membrane of endoplasmic reticulum. गोल्जी एपरेचर्स की जो membrane है किसके साथ कनेक्शन में होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ. Therefore, they constitute another portion of a complex cellular membrane system. Next, the material synthesized near the endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी मटेरियल सिंथेसाइज हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है? प्रोटीन, फैट एंड लिपिड. जो भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू बन रहा है, गोल्जी एपरेचर उससे क्या करेगा? पैक करने में, डिस्पैच करने में, उसकी पैकेजिंग और डिस्पैचिंग में हेल्प करेगा टू द वेरियस टारगेट ऑर्गन इनसाइड द एंड आउटसाइड द सेल. सेल के अंदर या बाहर जहाँ भी रिक्वायरमेंट है उस प्रोटीन की, लिपिड की, मॉलिक्यूल की, उस मटेरियल को पैकेजिंग में और डिस्पैचिंग में हेल्प करेगा. नाउ इट्स फंक्शन इंक्लूड, इसके अलावा गोल्जी एपरेचर का क्या फंक्शन है? इट इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन द वेसिकल्स. गोल्जी एपरेचर का और फंक्शन क्या है? द कॉम्प्लेक्स शुगर में बी मेड फ्रॉम द सिंपल शुगर इन द गोल्जी एपरेचर. नाउ गोल्जी एपरेचर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम ऑल्सो. इसके अलावा गोल्जी एपरेचर्स में किसकी फॉर्मेशन हो रही है? लाइजोसोम की. सो ये क्वेश्चन आता है, वेयर लाइजोसोम्स आर फॉर्म्ड? लाइजोसोम्स आर फॉर्म्ड इन द गोल्जी एपरेचर्स. Next is the topic, next is the cell organelle I am going to discuss with you is the lysosome. Lysosomes are a kind of waste disposal system of the cell. सेल का जितना भी वेस्ट है जहाँ जाकर कहाँ इकट्ठा हो जाता है? लाइजोसोम में. Lysosomes help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelle. लाइजोसोम किस में हेल्प कर रहा है? फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट करने में. फॉरेन मटेरियल क्या है? जितना भी सेल के लिए अनवांटेड मटेरियल है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन मटेरियल. नाउ फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया, फूड, ओल्ड ऑर्गेनेली जितनी भी है, लाइजोसोम उसे क्या करेगा? ब्रेक डाउन कर देगा. हेल्प देम ब्रेक देम इनटू स्मॉल पीसेस. इसके अलावा लाइजोसोम कैन एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव इंजाइम. लाइजोसोम में क्या प्रेजेंट होते हैं? पावरफुल डाइजेस्टिव इंजाइम प्रेजेंट होते हैं दैट हेल्प इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक मटीरियल, जो सभी ऑर्गेनिक मटीरियल को ब्रेक डाउन करने में और उनका डाइजेशन करने में हेल्प करता है. ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन द सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, मान लो सेल अपनी एक्टिविटी अच्छे से नहीं कर पा रहा, कोई भी डिस्टर्बेंस है सेल के स्ट्रक्चर में, सेल की फंक्शनिंग में, सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म में कोई भी डिस्टर्बेंस होगा. फॉर एग्जांपल व्हेन द सेल गेट डैमेज, अगर इन केस कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है, व्हेन द सेल गेट डैमेज, लाइजोसोम क्या होगा? ब्रस्ट हो जाएगा एंड देयरफॉर एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल. और लाइजोसोम में जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो अपने ही सेल को खा जाएंगे, अपने ही सेल को ब्रस्ट कर लेंगे. डाइजेस्ट देयर ओन सेल, अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेगा. दैट्स वाई लाइजोसोम का एक और नाम है, दे आर नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल. लाइजोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स विद द डाइजेस्टिव एंजाइम. लाइजोसोम में क्या प्रेजेंट होते हैं? बहुत से डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. और ये एंजाइम कहाँ बन रहे हैं? दे आर मेड बाय द रफ एंडोप्लाज्मिक reticulum. Further, the next organelle we will discuss in the next video. Thank you.